Hello students, so today's chapter is from class 7th, Nutrition in Animals. So let's start this chapter. In this chapter, first point is digestion. What is digestion? The breakdown of complex components of food into simpler substance is called digestion. Okay, so digestion means जो आप कॉम्प्लेक्स फूड यानी कि जो आप प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट डिफरेंट चीज़ लेते हो अपने फूड्स में, तो ब्रेक डाउन ऑफ दैट कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन. अंडरस्टूड? Digestion in human system. How the digestive system work, the name of the parts of digestive system we study in this chapter. In class 7, this diagram is given. First, digestion in humans starts from mouth. This is called buccal cavity. And the next thing is salivary gland. Okay, and this line where the food passes into the stomach is called esophagus. Yes, the name of this point is starts with O letter, but its name is esophagus. And this is J shaped, it's called stomach. And here is the liver, and here is the gallbladder, and the next is pancreas, and the small intestine and large intestine, rectum and anus. Okay, so these are the parts of digestive system. You should learn this diagram also. This is very important for class 7th also. But in your examination for CET and UTET, they not ask about the diagram, they ask about the function of the parts of the digestive system. So let's discuss this next point. These parts together form the alimentary canal. Okay, these all parts together form the alimentary canal, and this is we also call digestive tract. What we call digestive tract. And the next point is stomach. Small intestine, various glands and such as salivary glands, the liver and pancreas secrete digestive juices. जैसे हमारे स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, वेरियस ग्लैंड्स हैं सच है जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, और जो लीवर है एंड पेनक्रियाज है, ये क्या सिक्रेट करते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस. यानी कि आप जो भी खाना खाते हो सबको डाइजेस्ट करने के लिए ये खुद से अपने अंदर कुछ जूसेस प्रोड्यूस करते हैं. दे आर कॉल्ड डाइजेस्टिव जूसेस. So digestive tract यानी alimentary canal plus associated glands, they make digestive system. What they make? Digestive system. Okay, who make digestive system? Alimentary canal या digestive tract plus associated glands means okay, and they make digestive juices. Understood? And we discuss about the process, how the food we take and how the food break down in simplest form. So starts from this point, buccal cavity. What is starts from this buccal cavity यानी कि mouth. So first we understood this. When we intake of food material into simple ones, यानी कि this is called ingestion. What we call इजेशन. जब हम अपने फूड को माउथ के थ्रू फर्स्ट अपने मुंह पे लेते हैं उससे क्या बोलते हैं? इजेशन. व्हाट वी कॉल इजेशन. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज डाइजेशन, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड. डाइजेशन मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, यानी कॉम्प्लेक्स फूड को जो आप रोटी लेते हो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या किया जाता है? ब्रेक डाउन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ योर टीथ, टंग. ओके, अब बहुत सारा प्रोसेस होता है फिर अंदर जाके. वी डिस्कस इन नेक्स्ट पॉइंट, बट दीज पॉइंट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज इजेशन, व्हाट इज डाइजेशन, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. ये इंजेशन है और ये इजेशन है. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन मीन्स मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन. फर्स्ट में इजेशन यानी कि फूड को लेते हैं, इनटेक करते हैं. डाइजेशन मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, और एब्जॉर्प्शन मीन्स जो आपने जो भी खाना डाइजेस्टेड फूड है वो मूवमेंट करेगा आपकी बॉडी में थ्रू द ब्लड वेसल्स और
थ्रू द इंटेस्टाइन। ओके, जो इंटेस्टाइन के वॉल पे ब्लड वेसल्स हैं, वहाँ से आपका खाना पूरी बॉडी में क्या किया जाएगा, पास करा जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट, आपके इंटेस्टाइन ने उसको एब्जॉर्ब तो कर लिया, अब उसका यूटिलाइजेशन क्या होना है, क्या उसका यूज़ होना है उस खाने का। ओके, तो दैट प्रोसेस कॉल्ड एसिमिलेशंस। लाइक यूटिलाइजेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज द प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। अगर if you take maybe egg, so that food used as a proteins for your body. Okay, next point is egestion. Egestion means removal of waste through anus, और जो वेस्ट है उसको फीकल भी बोलते हैं। ओके, इजेशन में जो आपके बॉडी में बचा कुचा जो भी वेस्ट होता है वो सब बाहर आता है थ्रू एनस के। अंडरस्टूड? एंड फ्रॉम वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर mouth. Okay, in mouth the first buccal cavity starts from mouth. तो आपका जो खाना होता है, जो हम इजेशन करते हैं, इनटेक ऑफ फूड, कहाँ से स्टार्ट होता है, बकल कैविटी से। इन बकल कैविटी यानी कि माउथ में क्या होता है हमारे मेन, देयर आर टू थिंग, फर्स्ट इज टीथ एंड सेकंड इज टंग। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टीथ फर्स्टली. So there are two types of teeth. How many teeth? There are two types of teeth. First is milk teeth and second is permanent teeth. Okay, so milk teeth comes during infancy, यानी कि आपके बचपन से ही जो छोटे बच्चे होते हैं स्टार्ट होने लग जाते हैं आपके दांत आना, तो उनको मिल्क टीथ बोलते हैं। और ये कब गिरने स्टार्ट होते हैं, जब आप 6 to 8 ईयर्स होते हैं। दे स्टार्ट फॉल्स ऑफ एट द एज ऑफ 6 to 8 ईयर्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ परमानेंट टीथ. परमानेंट इज सेकेंड सेट ऑफ टीथ. जब आपके दूध वाले दांत गिर जाते हैं उसके बाद परमानेंट टीथ आते हैं. अगर वो गिर गए, ठीक है, अगर वो दांत गिर गए तो फिर आपको हम मतलब आर्टिफिशियली दांत पहनने होंगे, आर्टिफिशियली टीथ आपको कैरी करने होंगे. ओके, सो अरेंजमेंट ऑफ टीथ. वी ऑल नो टोटल देयर आर 32 टीथ इन आ माउथ. ओके, सो वी डिस्कस इन फर्स्ट 16 teeth in the lower jawline. Okay, तो in the first आपके जो इंसीजर होते हैं फ्रंट पे होते हैं. आपके जो माउथ होता है उसके फ्रंट पे 4 होते हैं इंसीजर. उस जो 4 दांत फ्रंट पे होते हैं आपके टीथ होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंसीजर. ओके, 2 + 2 यानी कि 4 हैं, 2 उधर 2 उधर, तो एक साथ ही होते हैं, तो ऐसे उसको काउंटिंग कर सकते हैं. इंसीजर, देयर आर टोटल इंसीजर 4 इन लोअर जॉ. वैसे ही सेम ऊपर वाले दांत में भी होगा, ऊपर वाले उसमें जॉ में भी होगा, तो 4 ऊपर इंसीजर होंगे, वैसे ही नीचे भी होंगे. तो हम ओनली वन साइड जॉ के बारे में पढ़ रहे हैं. नेक्स्ट इज कैनाइन. कैनाइन टीथ आर 2, 1 लेफ्ट साइड एंड 1 राइट साइड. ओके, एंड प्रीमोलर. प्रीमोलर टीथ आर 4, so 2 this side and 2 this side. Okay, and the next is molar. Molar teeth in the last, they are 6, 3 the left side, 3 right side. So how many teeth? 4 + 2 6, 6 + 4 10, 10 + 6 16. So in your lower jawline there are total 16 teeth. In the same way in upper jawline you also have 16 teeth. So total teeth are 32, and these the number of permanent teeth. Okay, so you should know how many incisors in a mouth. If they are asked about total teeth in a mouth, incisor तो 8 होंगे, but in only lower jaw के बारे में पूछेंगे तो 4 incisors. And canine are 2 and premolar are 4 and molar are 6, so 16 हो गए. Okay, next is in our mouth there is second thing is tongue यानी कि जीभ. सो टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग सलाइवा. किस चीज़ में हेल्प करता है, सलाइवा को जो सलाइवा जो टंग होता है हेल्प करता है मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विथ फूड. जो हमारे मुंह पे सलाइवा होता है उसको फूड के साथ मिक्स करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट इज टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन टंग. वट एवर यू ईट यू फील सम टेस्ट एंड दीज टेस्ट आर फेल्ट बाय यू थ्रू with the help of tongue. Okay, different regions of the tongue detect different taste. आपके जीभ में
जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स होते हैं, तो वहाँ पे अलग अलग टाइप का टेस्ट आप डिटेक्ट कर सकते हैं. मीन्स टिप ऑफ द टंग, आपका अगर दिस इज़ टंग, तो उसका जो टिप होता है यहाँ पे क्या होता है, स्वीट. यू फील स्वीट इफ़ यू ईट सम स्वीट थिंग, यू फील हियर एट द टिप ऑफ द टंग. एंड इनसाइड देयर आर salty and sour. You should remember in your mind the sequence of this taste. First sweet in the tip of the tongue, and in the side salty and sour. So in the question they ask in paper, they ask what is come first in the side of the tongue, salty or sour. So you should know sweet के बाद salty and then sour, and at the base line that is bitter. So more confusion in this two things, salty and sour. You should learn this thing. So first in the tip पे sweet हो गया and base पे bitter, but these both are starts with salty and sour. First sweet के बाद salty, salty के बाद sour. You should learn this sequence. Okay. Next point is esophagus. This line is called esophagus. We already discussed. This line is food pipe. इसको food pipe बोलते हैं. We call this esophagus. So what is the work of esophagus? Taking food from mouth to stomach by peristaltic movement. And peristaltic, what is peristaltic movement? They ask many times, what is peristaltic movement? Peristaltic movements means contraction and expansion of the muscles of the esophagus. जब वो सिकुड़ता है या खुलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं इसोफेगस के. उसी के वजह से आपका जो फूड होता है आपके माउथ से स्टमक में पहुंचता है. अंडरस्टूड. नेक्स्ट पॉइंट इज स्टमक, एंड स्टमक इज प्रेजेंट हियर, एंड इट शेप इज़ लाइक अ जे. ओके, जो अल्फ़ाबेटिक जे होता है उसकी तरह उसका शेप होता है. सो स्टमक, इन स्टमक द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, स्टमक में कौन सी ग्लैंड्स होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है. इट सीक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस. ओके, जो आप सोचते होंगे आपके खाना पच रहा है बॉडी में, जैसे बोलते हैं एसिड बन गया, या मतलब डिफरेंट जूसेस हमारा बॉडी प्रोड्यूस करता है. विद द हेल्प ऑफ दिस जूसेस वी डाइजेस्ट आवर फूड. सो दीज जूसेस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इफ द disbalance in the stomach and in these juices, maybe your digestive system not work properly. Okay, so these points are gastric glands secretes gastric juice, and gastric glands present in stomach. So let's discuss about the gastric juices. So there are 3 gastric juices. First is pepsin, second is HCl, and third is mucus. Okay, this is hydrochloric acid. Okay, and pepsin is an enzyme that break down proteins. जो आप बॉडी में प्रोटीन्स लेते हैं, लाइक एग और मिल्क, इन सब के थ्रू आपको क्या मिलता है, प्रोटीन्स मिलता है. तो उसको कौन ब्रेक डाउन करता है बॉडी में जाने के बाद, पेप्सिन जूस. ओके, दिस इज पेप्सिन इज एंजाइम, one type of enzyme that break down proteins. Understood? And HCl, what is the work of HCl? Hydrochloric acid. This is important in our body. Make medium acidic, यानी कि जो आपके मीडियम को क्या बनाता है, एसिडिक बनाता है. अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज म्यूकस. म्यूकस हमारी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक. जो इनर लाइनिंग होती है उसको प्रोटेक्ट करता है म्यूकस. ओके, next is fourth, small intestine. What is small intestine? So here is small intestine. This is small intestine here. So what is the work of small intestine? The complete digestion is here. जो भी बॉडी में जैसे कुछ चीज़ों का डाइजेशन हमारे स्टार्ट हो जाता है लीवर पे, जो फैट का जो डाइजेशन होता है कहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा, लीवर में. बट द कंप्लीट डाइजेशन इज़ इन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है. एंड द मेन पॉइंट दे आस्क अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज 7.5 मीटर. ओके, स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस विच चेंज कार्बोहाइड्रेट इन ग्लूकोज एंड एट्सेट्रा. स्मॉल इंटेस्टाइन में भी क्या होता है, आपके जूसेस होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज करता है.
कंप्लीट डाइजेशन पूरी फूड का आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. ओके, सो स्मॉल इंटेस्टाइन जूस विच चेंज कार्बोहाइड्रेट एंड ग्लूकोज. ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जो आपका जो लीवर है और जो पेनक्रियाज है, जो भी इनमें आपका जूसेस प्रेजेंट होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं चीज़ों को डाइजेस्ट करके कंप्लीट डाइजेशन होने के लिए उस फूड को सेंड करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में. इन लीवर प्रोड्यूस बाइल जूस एंड स्टोर इन गॉल ब्लैडर. इन लीवर क्या होता है, बाइल जूस प्रेजेंट होता है, एंड दिस बाइल जूस डाइजेस्ट फैट इन द फूड. ओके, and the next point is pancreas. Pancreas also produce pancreatic juice, and there are some intestinal enzymes, intestinal enzyme. So जो ये pancreas juices होता है उसको acts करता है इन intestinal enzyme और convert करता है. क्या convert करता है? First thing is carbohydrate. So carbohydrate किस में change होता है? ग्लूकोज में. और ये कहाँ change होता है? small intestine में. Okay. And next is fats also digest in properly and completely in a small intestine, and these fats change into fatty acid plus glycerol. Okay, and the proteins also completely digest in a small intestine, and these proteins change into amino acid, and the pancreatic juice acts on these intestine enzymes. So intestinal enzyme are three types: carbohydrate, fats and proteins. And carbohydrate change into glucose, fats change into fatty acid plus glycerol, and proteins change into amino acid. You should remember this point. carbohydrates किस में change होता है? ग्लूकोज में. फैट चेंज होता है फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में, एंड प्रोटीन चेंज होता है अमीनो एसिड में. ओके, अंडरस्टूड. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ विली. स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे इंटेस्टाइनल एंजाइम्स होते हैं, लाइक द सेम वे हेयर सम अदर थिंग ऑल्सो प्रेजेंट, विली. एंड विली एक लुक लाइक अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ऐसे लाइक. ओके, और इसके क्या होता है? स्मॉल स्मॉल हेयर प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड वेसल्स. जो फूड को एब्जॉर्ब करता है, जो एब्जॉर्ब करता है, हमने पढ़ा था ना ब्लड वेसल्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो मूवमेंट होता है डाइजेस्टेड फूड का, यहाँ पे पढ़ा था हमने. जो मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ से? ब्लड वेसल्स के उसमें पास होता है थ्रू द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन. तो ये इंटेस्टाइन में कौन हेल्प करता है? विली. विली हेल्प करता है फूड को एब्जॉर्ब करने में इनटू द ब्लड वेसल्स. अंडरस्टूड. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज लार्ज इंटेस्टाइन. ओके, large intestine present here. This is large intestine, ये outer part, this is large intestine. So length of this large intestine is 1.5 meter. Understood. And here undigested food come in this and reabsorb water from this. यहाँ पे क्या होता है आपका? undigested food यहाँ पे आता है और इसमें से फिर से वापस से वाटर को रीएब्जॉर्ब किया जाता है अगर कुछ बचा कुचा वाटर है, और इसमें से थोड़ा सॉल्ट भी अगर खाने में बचा तो वो भी ले लिया जाता है यहाँ पे. और देन दिस वेस्ट कम आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनल. और जो भी खाना बचता है वो वेस्ट के रूप में पहले थोड़ी टाइम के लिए सेमी सॉलिड फॉर्म में रेक्टम में यहाँ पे स्टोर होता है, रेक्टम में सेमी सॉलिड फॉर्म में, एंड थ्रू एनस इट इजेक्ट आउट. ओके, इजेक्शन हो जाता है यहाँ पे, रिमूवल ऑफ वेस्ट थ्रू एनस. और वेस्ट को हम फीकल भी बोलते हैं. अंडरस्टूड. एंड द मेन पॉइंट इज, दिस इज ऑल्सो मेन पॉइंट, डाइजेशन ऑफ फैट. इन योर एग्जाम दे आस्क वेयर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट्स. ओके, वेयर हैपन द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट. सो फर्स्ट स्टार्ट्स डाइजेशन ऑफ फैट्स इन लीवर. लीवर्स में जो बाइल जूस होता है हेल्प करता है टू ब्रेक द फैट्स इनटू स्मॉल पीसेस एंड कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट इन स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, तो दिस इज़ द मेन पॉइंट. जो डाइजेशन ऑफ फैट होता है कम्प्लीटली उसका डाइजेशन होता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन है, बट इट स्टार्ट्स इन द लीवर्स एंड बाइल जूस के थ्रू. ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इन दिस चैप्टर इज digestion in grass eating animals. First we talk about human digestive system. We already completed. Now we discuss about digestion
इन ग्रास ईटिंग एनिमल, जो हमारे गाय बच्चियाँ होती हैं, जो भी होती हैं जो घास खाती हैं, उनमें डाइजेशन किस तरह से होता है. ओके, सो इन दिस grass eating animal, a rumen present. Rumen, the point is rumen. And what is rumen? Animal quickly swallow the grass and store it in a part of the stomach called rumen. जो animals होते हैं, they not digest their complete, they not properly chew their food in mouth. ओके, वो पूरा एक जैसे खाना खाते हैं, वो जैसे हम पूरा रोटी लेते हैं तो हम एक साथ पूरा चबा के उसको पेट में डालते हैं, बट ये क्या करते हैं, एक साथ नहीं चबाते खाने को. ये क्या करते हैं, आपका पहले थोड़ा थोड़ा चबा के सीधे स्वेलो यानी कि नेल देते हैं और स्टोर कर देते हैं रूमन में. ओके, सो जहाँ पे जल्दी क्विकली स्वेलो करके अपने खाने को स्टोर करते हैं यानी ग्रास को स्टोर करते हैं, दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड रूमन. और रूमन प्रेजेंट इन स्टमक. ओके, स्टमक के एक पार्ट में ही आपका रूमन प्रेजेंट होता है. और कर्ड, सेकेंड पॉइंट इज़ कर्ड. कर्ड मीन्स पार्शली डाइजेस्टेड फूड, जो इसने आधा अभी अनडाइजेस्टेड फूड को स्वेलो कर लिया है, मतलब पूरा चबाया नहीं है उसको, या आधा ही अगर इसने चबा कर डाल दिया उसको पूरा प्रॉपर डाइजेस्टेड फूड नहीं बोलेंगे ना, तो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है तो उसको बोलते हैं वी कॉल कर्ड. नेक्स्ट है रूमिनेशन. व्हाट इज़ रूमिनेशन? कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड एनिमल चू इट. आपने देखा होगा जब अपने घर पे देखना होगा किसी के गाय भैंस होंगे तो वो खाना उनके पास सामने कुछ भी नहीं पड़ा होगा, लेकिन वो अपना कुछ ना कुछ चबा रहे होते हैं, वाइट वाइट सा उनके मुंह पे दिखता है, तो दे रिटर्न जो कर्ड को होता है उसको रीटेक करते हैं अपने माउथ में वापस इन फ्रॉम देयर रूमन, फ्रॉम देयर स्टमक. स्टमक का जो रूमन प्रेजेंट होता है वहाँ से माउथ में अपने लाते हैं वापस और उसको प्रॉपर च्यू करते हैं. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन. ओके, दीज एनिमल्स आर कॉल्ड, और जो इस टाइप के एनिमल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? रूमिनेंट. अंडरस्टूड? एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द ग्रास इज़ रिच इन सेलुलोज. जो ग्रास होती है उसमें सबसे ज़्यादा सेलुलोज होती है. अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट का ये क्या है? पार्ट है, टाइप है. मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज. हम डायरेक्ट मतलब सेलुलोज नहीं डाइजेस्ट कर सकते हैं, और कुछ एनिमल्स भी ऐसे ही हैं. बट कुछ एनिमल्स लाइक कैटल एंड डियर जो होते हैं, दे डाइजेस्ट प्रॉपरली सेलुलोज विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमन. ओके, जो कुछ कैटल और डियर्स टाइप के जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो उनके रूमन में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, दे हेल्प टू डाइजेस्ट द सेलुलोज. ओके, एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, रैबिट एक्सेट्रा हैव अ लार्ज सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कैकम. आपके जो हॉर्सेस होते हैं, रैबिट्स होते हैं, इस टाइप के लार्ज, इनकी बॉडी में क्या होता है, एक लार्ज सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, दे आर कॉल्ड कैकम, बिटवीन द ईसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन. आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है और ईसोफेगस है उसके बीच में एक कैकम होता है, और द सेलुलोज ऑफ फूड डाइजेस्टेड हियर बाय द बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन. सो जो ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में कैकम होता है, जो अगर ग्रास में सेलुलोज जो ज़्यादा होता है उसको डाइजेस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया इन द कैकम. ओके, और ये जो कैकम होता है इट नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन्स. ओके, सो मे बी दे आस्क कैकम प्रेजेंट इन ओनली एनिमल्स, दिस इज़ नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन्स. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रॉम दिस चैप्टर इज अबाउट अमीबा एंड फीडिंग एंड डाइजेशन. अमीबा, कैसे अमीबा में खाना वो लोग अपना फीड करते हैं, खाते हैं, और कैसे डाइजेस्ट करते हैं. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द अमीबा. अमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर. जो इसमें एक सिंगल सेल से ही बना हुआ अमीबा होता है जो पॉन्ड वाटर में मिलता है. ओके, द फूड ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल. इसमें फूड वैक्यूल होता है जिसके थ्रू से वो अपने खाने को क्या करता है, खाने को ट्रैप करता है. अपने बॉडी में से कुछ इस टाइप के फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को ऐसे बाहर निकालता है. कभी उस अपने शेप को इस यहाँ से निकाल देगा, कभी यहाँ से निकाल देगा, तो अपने शेप को और पोजीशन को चेंज करते रहता है. और इन्हीं के हेल्प से अब फूड वैक्यूल, मतलब यहाँ पे फूड वैक्यूल बनता है और अपने खाने को, जैसे एक यहाँ से बन गया, एक यहाँ से बन गया, तो ये जो एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इसके बीच में इस तरह से कुछ कर देंगे कि खाना यहाँ से ऐसे ट्रैप कर लेंगे. ओके, तो दे टेक फूड या दे ट्रैप फूड इन अ फूड वैक्यूल. फूड वैक्यूल में अपना फूड लेते हैं. अमीबा हैज अ, क्या क्या अमीबा में होता है, हैज अ सेल मेम्ब्रेन. ओके, फर्स्ट थिंग इज इट इज़ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. Second thing is it has cell membrane and it has a rounded and dense nucleus and many small bubble like vacuoles in its cytoplasm.
सो बबल्स लाइक वैक्यूल्स किसमें प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में, और अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन और राउंड और डेंस न्यूक्लियस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इट चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन, आई ऑलरेडी डिस्कस, इट चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन कॉन्स्टेंटली। ये अपने जैसे इसका स्ट्रक्चर ऐसा है तो ये कभी ऐसा इससे भी इसको निकालेगा, कभी इसको, कभी इसको, कभी इसको, तो अपने पोजीशन को क्या करता है, चेंज करते रहता है और शेप को भी चेंज करता है। सो पुसेस आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे जो ये पुसेस करता है, बाहर निकालता है, इसको क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया, व्हाट वी कॉल सूडोपोडिया। ओके, so I hope you understand this chapter completely, about the nutrition in animals, and we discuss about the digestive system in humans and digestion in grass eating animals. I hope you understand this chapter. We will meet soon again. Okay, so bye.